السلام علیکم ناظرین رس 9 بجے تو خبرنامہ ہیت بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل جے ڈی یو طرف آز حلقہ انتخاب واگور کن کیان علاقن مز چناوی جلسن ہند ساز کرنا آمت یمن مز پارٹی ہند ریاستی صدر جی ایم شاہین امیدوار ریحانہ بیگم تو دویمہ لیڈر علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ لوکن ون آو تم گھن ین والن اسمبلی انتخابن دوران پارٹی امیدوارن ہندس حقس مز ووٹ دن تت جی ایم شاہین وونمت یدوی لوکو طرف جے ڈی یو پارٹی ووٹ ذریعہ اتواس کرنا آو تو تم ساری وادین پور کرنے یمن ہز ذکر چناو منشورس مز کرنے چھ آمد میں یہاں سے پیدا ہوا ہوں اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کی تکلیفیں بہت ہیں. آپ جانتے ہیں گلمرگ کے ساتھ یہ لوگ وابستہ ہے اور بہت سارے کام کرنے اس علاقے میں. اگر انشاءاللہ سرکار بنتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی جتنی مدد ان لوگوں کو چاہیے وہ دینے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. اور ایک دفعہ ریحانہ آ جائے الیکشنز میں یہ کامیاب ہو جائے تو جو بھی مدد ہوگی وہ ضرور کریں گے. میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس علاقے کو بنانے کا. میں نے ان لوگوں کو ریہابیٹیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ لوگ ڈیپینڈیبل ہے گلمرگ سے. اس یونینز جو ہے ان کو سٹرونگ کرنا ہے, ان کی رجسٹریشن کو گورنمنٹ آف انڈیا میں درج کروانا ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں. شاہین صاحب نے جو ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جتنے لوگ جو ہے ریلی میں ہوں گے کیا اس کے برابر لوگ یہاں زیادہ ہی روز ہوتے ہیں. میں جب بھی گزرتا ہوں میں اکیلے آتا ہوں, کاروان بن ہی جاتا ہے. وہ خود بخود ریلی بنتی ہے. ہم تو سری نگر سے 2 گاڑیاں چلتی ہے یا کریڑی کا کوتل سے, اور راستے میں اور 50 گاڑیاں جڑتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. ووٹ تو دینا ہی دینا ہے, وہ کوئی کسی کو احسان نہیں ہے. ہمارا مین موٹو ہے اس کانسٹیٹوئنسی کو ڈیولپ کرنا, یہاں کے روزگار کے وسائل کھولنا, ٹورزم کو بوسٹ کرنا, لوگوں کو جابز دینا, KCC لون معاف کروانا, ایپلز کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچانا. ٹورزم کو بوسٹ کیسے ہو سکتا ہے, ٹرین سروس کیسے آ جائے یہاں پر, لوگوں کو روزگار کیسے بڑھے, گلمرگ میں عزت کیسے ملے, ہمارے کسی بھی جو بھی ہمارے ایسوسیشنز ہے, چاہے پونی والا ہے, سلیج والے, ان کو کیسے ریسپیکٹ ملی, ہم نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے. ابھی دے رہے ہیں, ابھی آہستہ آہستہ جیسے جیسے فیز وائز ہم لوگ بھی کینڈیڈیٹس ڈکلیئر کرتے. کوئی بھی ورکر یہ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ جی ایم شاہین نے ہمارا کام اس سے پہلے بھی نہیں کیا. دیکھیے الیکشنز تو ابھی ڈکلیئر ہوئے, لیکن یہ جو میرے لوگ ہیں اس سے پہلے بھی میرے پاس 90 سے لے کر ان کا ایک رشتہ ہے. 35 سال گزر گئے. آج کا رشتہ نہیں ہے, 35 سال کا رشتہ. میں نے کبھی ان کو ووٹ نہیں مانگا, آج پہلی دفعہ ان کے سامنے ووٹ مانگ رہا ہوں ریحانہ کے لیے. ایک بات ضرور ہے, دیکھیے ان لوگوں کی ایکسپیکٹیشنیں ہیں, امیدیں ہمارے اوپر, اور جہاں پر تک آپ نے دھوکے کی بات کی, انہوں نے دھوکہ کھائے, اس میں کوئی رائے والی بات نہیں. الحمدللہ اب ایک ریڈی کے ساتھ یہ کانسٹیٹوئنسی جڑی ہے. یہ کام, یہ کاروبار, یہ پوری ذمہ داری, ریسپانسبلٹی ود اتھارٹی, ود اے اوتھ ہم اٹھا کر یہ بولتے ہیں آپ کو کہ یہ سب کام کر کے دیں گے. مجھے الیکشن کمشنر آف انڈیا سے فون بھی آیا, اور یہ 2 لوگ ہیں, ایک افسر آپ کا پڑوسی ہے, وہ مائک پہ نام نہیں بتائیں گے, اور فاروق صاحب ہے, ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب, جس نے پہلے بندوق سے, پولیس سے اور آرمی سے لوگوں کو ڈرایا. اب وہ ریڈ فلیگ لگا کے جو ہے آپ نہیں چل سکتے. ابھی بھی اور کل کچھ اور بھی بتانے جا رہا ہوں, انشاءاللہ کل پریس کانفرنس سے بتاؤں گا کہ جو وائلیشن آف سپریم کورٹ رولنگز اینڈ وائلیشن آف الیکشن کمیشن آف گائیڈ لائنز. اننت ناگس مجھ آز بھارتیہ جنتا پارٹی طرف میٹنگ ہند ساز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو ین والن اسمبلی انتخابن حوالہ کتن دل دن آو, تت ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن پارٹی زمینی سطرس پہ مضبوط بنانے باپت کام کریں, یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی ست وابستہ سپدن. لطیف صاحب آڑو کن زو تین پلون تم 7 دو 8 دو الیکشن دی جاتی. الیکشن کا جو سسٹم ہے ہم جا کے جیت سکتے ہیں, ووٹر کو بوتھ تک. الطاف صاحب بہت کرا ڈور ٹو ڈور کمپین.
मुझे पार्टी ने यहाँ भेजा है कश्मीर के अंदर पर जो इलेक्शन हो रही है इसको देखो और जहाँ जाकर महसूस जाके हल करो। और मैं कश्मीर में 2008 में भी था, 14 में भी था, तो 7 साल में यहाँ पर बाहरी रहा हूँ, 3 से लेके 9-10 तक। और कश्मीर के एनवायरनमेंट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ पर लोग जो अमन चाहते हैं, मेहमानबाजी सभ्यता है यहाँ पे, दिल से किसी का आदर करते हैं, मेहमानबाजी करते हैं। और मैं जो हमारी मीटिंग है या हमारा दौरा कल था पुलवामे का, वहाँ पर बूथ वालों से मिल के आए हैं। और आज हमारा अनंतनाग में एक कॉन्स्टिट्यूंसी का है, 2 दिन के बाद जितने भी बाकी हैं वहाँ पर, क्योंकि जो हमारा इलेक्शन जीतने का सिस्टम है वो बूथ जीता तो इलेक्शन जीती। हम इनको समझते हैं बूथ को कैसे हैंडल करना है, और हमारे जो वर्कर हैं, जो डेडिकेटेड हैं, इनको डेडिकेशन बतानी कैसे करना है, ताकि ये हर वोटर को बूथ तक लेके जाएं, ताकि अपनी उम्मीदवार की जीत को कामयाब करें, पक्का करें, ताकि जीत के हमारे लोग आ सकें, भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ पर कमर फैला सके। इसलिए हमारा ये टूर है, वहाँ पर आए हैं और ये दुआ करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाए, ताकि अमन शांति बहाल रहे, लोगों को खुशहाली। हीरपुर शिपियन तो दोमिन इलाकन में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ चुनाव जलसन हुंद सांझ करना आमुत, यमन मज पार्टी उम्मीदवार जावेद अहमद डार तो दोमिल लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। यिल जन अत मौके पे पार्टी वर्करन पे जोर दिन आव ज तम गसन पार्टी मजीद मजबूत बनावनस हवाले चुकसान काम करन, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी उम्मीदवार हिंदिस हकस मज पन वोट करन। उसकी वजह से आज लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। देखिए 150 स्कीमों से भी ज्यादा स्कीमें मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च की है। उन स्कीमों का लाभ आज लोग ले रहे हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा दौरा था आज 10 गांवों में, और 10 गांवों में आपने खुद भी एक गांव में देखा गुरपुरा में कितना अच्छा एक प्रोग्राम हुआ है। और हर एक गांव में आज लोग खुद निकल के आते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कश्मीर में पीस दी है और सबसे ज्यादा प्यार कश्मीरी पीस के साथ करते हैं। बट ये सबसे अच्छी बात है, जब पीडीपी और एनसी की आपस में सुधरेगी तब वो बात करे इस बात पे। अभी पीडीपी की लड़ाई चल रही है शोपियान में, अभी एनसी की लड़ाई चल रही है शोपियान में। मुझे नहीं लगता, मुझे भी इन बातों में पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत सिपाही हूं मैं, और मेरे जो मेरे साथ लोग हैं और ये भी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी शोपियान से जीतेगी, क्योंकि 2014 में सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले हैं। और इंशाल्लाह आज मुझे पूरा यकीन है अपने लोगों पे और अपने इन लड़कों पे, खासकर यूथ पे, शोपियान के यूथ पे, क्योंकि जो मैंने इनके लिए 2010 से काम किया है, आज वो काम खुद दिखता है। आप यहाँ भी देख लीजिए, नीचे भी देख लीजिए, ऊपर भी देख लीजिए, पूरा यूथ। भारतीय जनता पार्टी तरफ ये हल्के इंतखाब खान साहब बापत सीनियर लीडर अली मोहम्मद मंडेट दिन आव तज तमो पार्टी हाईकमान शुक्रिया अदा करान वोनमुत ज तम पतम कई काल पे इलाकस मज पन सियासी खदमत अंजाम दिवान, ताहम तिमन पार्टी तरफ असम्बली मज गसनुक मौका फराहम करना आमुत, युत जन इलाकन लूकन हज मजीद खदमत करनस मज आसानी सपदे। यिल जन तिमो लूकन वोन ज तिम गसन यन वालन असम्बली इंतखाबन दौरान तिहंदिस हकस मज पन वोट दिन, युत जन सु मकसद युद्धन से लूकन हिज खदमत करित हेके। पहले मैं आपका खैर मकदम करना चाहता हूँ, आप लोग आए, ये मुबारक सारी कश्मीर घाटी के लिए, खासकर खान साहब एरिया के लिए है। बाकी आपने बात चली क्या करना चाहिए खान साहब के, आप क्या कर सकते हैं। हमारा मैनिफेस्टो अयान है, हम लोग के पास गए और लोगों से हमने व्यूज कलेक्ट किए हुए क्या करना है, कैसे हम कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। तो वो सारी बात अयान है। भारतीय जनता पार्टी को मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत नहीं है, हमने कलेक्ट किया लोगों से ग्रीवेंस, हमें क्या करना चाहिए, कैसे में चलना चाहिए, तो बाकी वो अयान है। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस कौम का खादिम हूँ, खादिम बनकर काम करूंगा और साथ साथ चलूंगा, साथ साथ चलाऊंगा। जो हमारा नारा है, जो हमारी मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रवास और सबका विश्वास, हम उसी मंत्र को आगे चलाएं और इस इलेक्शन को कंटेस्ट करें। इंशाअल्लाह माननीय सरकार बनाए। आज वो राजनीति नहीं है, लोग आज बदल चुके हैं।
लोग बदलाव चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। अगर विकास की बात करें पिछले 70 साल में देखो और इन 10 सालों में देखो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और क्या करके दिया। इसलिए आज वो कश्मीरी कश्मीरी नहीं रहा, आज हर कोई कश्मीरी जागरूक है और वो सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे चलना चाहिए, मुझे किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो मुकाबले में कहाँ देखते हैं खान साहब ने खुद को? इकाड़ में 2-4 लोग आए हैं, एक को आगे होना ही है। वक्त फैसला करेगा, लोग फैसला करेंगे कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे चलेगा। सुंबल बंडपुरिस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मीटिंग सांस करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत जो तम गन चुकसान मेहनत करें युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी सहित वबस्त सपदन। और इसीलिए कल हमने बांडीपोरा में भी रखा और गुरेज में भी रखा और आज आपने देखा कि आज तकरीबन 100-200 से करीब जो हमारी वर्कर खास वर्कर जो है वो आज आए थे यहाँ पे। तो इसीलिए आज मीटिंग हमने रखी है। तो इंशाल्लाह जो आने वाले असेंबली इलेक्शन है उनके लिए आज हम टीम जो है वो तश्कील करेंगे। इंशाल्लाह जो पार्टी ने कहा कि हम तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारे है, चाहे गुरेज, बांडीपोरा और सोनावारी, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी पे हम कॉन्टेस्ट करेंगे और हमारे जो ये कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह वो अच्छे कैंडिडेट होंगे। 2 दिन आपको पता ही है कि 3 फेज़ों में इलेक्शन जो है वो चल रहा है। पहले साउथ को था, उसके बाद सेंटर को कल निकला, अब नॉर्थ को निकलेगा। इसके बाद हमने ये मुहिम स्टार्ट किया है। हमारा भी 1-2 दिन में जो कैंडिडेट का लिस्ट जो है वो निकलेगा और मेरी जो भारतीय जनता पार्टी टीम है, भारतीय जनता पार्टी टीम चाहे सोनावारी की हो, बांडीपोरा की है, तो वो तैयार है इंशाल्लाह। कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अगर और एक बार यहाँ पर आ गई, यहाँ पर और पाकिस्तान बनेगा। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ये कश्मीर जो है, नेशनल कश्मीर जो अगर इनके हाथों में चला गया, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बर्बादी यहाँ पर मचाएगा। मुझे ये चीज़ बताए, हिलाल अकबर लोन साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि उसका बाप जो है वो 4 बार, मुझे लगता है 3 बार MLA रहा है, मिनिस्टर रहा है, मतलब MP भी 1 बार रहा है। उसने क्या किया मुझे आप लोग बताएं ना, उसने क्या किया। हमारा जो नायद का हॉस्पिटल जो है वो अभी भी वो हॉस्पिटल हमारा नहीं है, बन रहा है। उसके दौर में वो नहीं बना, अब कब बनेगा। बस वो एक ही बात कह रहा है, उसके मुंह में एक ही बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू की पार्टी है। मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा है। अगर कल हमारी हुकूमत आएगी, हमारी हुकूमत जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उनको कोalition किन के साथ करनी है, चाहे कोई भी तंजीम यहाँ पर बने, चाहे PDP हो, कांग्रेस हो, नेशनल हो, जो भी हो, उनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ कल अलायंस करनी। अवामी इत्तेहाद पार्टी तरफ ये सुंबल सोनावारी मज यासिर रीशस मंडेट दिन आव तत पार्टी लीडरों तरफ नाराजगी हूं इजहार करान वन आमुद पार्टी हाईकमान तरफ अमे हवाले मुकामी लीडरन तो वर्करन सहित कह सलाह मशवर करना आमुद। To be very frank, I was not consulted. देखिए, बिफोर मेकिंग डिसीजन दे शुड डू वन थिंग। उनको एक चीज़ करना चाहिए, एटलीस्ट जो हमारे यहाँ के वर्कर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि हमें क्या करना है। बट मैं ये आपको बताऊं कि पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं नीचे किसी हद तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कायम नहीं रहे। जो उनका रिस्पॉन्स पहले लोगों के लिए था वो इस वक्त नहीं दिखा मुझे। तो अगर ये बात होती, उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में लिया होता, मैं आपके सामने अभी नहीं होता। देखिए, अभी तक तो मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं लोगों की राय पे रिसर्च कर रहा हूँ कि वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। वो चाहते हैं कि हम साथ चले या ना चले, वो उनकी राय पे डिपेंड करता है कि हम आगे फ्यूचर में कौन सा स्टेप लेंगे। हाँ, बट मैं आपको ये यकीन से बता सकता हूँ कि कल 4 बजे तक ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या डिसीजन किया। देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो खफा भी है इससे और कुछ मुतफिक भी है, बट ओवरऑल हम ये असेसमेंट इस वक्त कर रहे हैं कि मेजॉरिटी जो लोगों की है वो कहाँ की तरफ जा रही है। तो मेरा यही कंसर्न रहेगा कि मैं लोगों से कम्युनिकेट करूं और विद इन फ्यू आवर्स या कल तक आपको क्लियर हो जाएगा कि लोगों का स्टैंड क्या है, क्या रहेगा। हाँ, बट मैं ये बात भी आपसे बोलना चाहूँगा कि ये 30,000 वोट्स है जिन्होंने पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में डिसाइड किया था कि हम इंजीनियर साहब के सपोर्ट में खड़े होंगे। बट मुझे भी कुछ कॉल्स ऐसी आ रही है या कम्युनिकेशन ऐसी कुछ हो रही है कि जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा है और कुछ लोग इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। बट फाइनली जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स होंगे या हल्का प्रेसिडेंट होंगे उनका कंसर्ट लेके ही हम आगे कुछ डिसाइड करें। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सरनकोटस में आज स्वीप प्रोग्राम हवाले तकरीब सांस करना आमुत यथ जिले इंतजामी क्यों
अफसरों अलावा आम लूकों तलब इलमों तो वस्तादों शिरकत कर अत मौके पर ये जानकारी रैली हंद साज करना आव या दौरान लूकन वोट के अहमियत हवाले जान दिन आई तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज वोटिंग शरह मज इजाफ करने हवाले यन प्रोग्रामन हंद साज करने युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पन जमहूरी हक अदा करित हेकन। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल सुरमकोट का स्टूडेंट हूँ। वोट जो है हमारा हक है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हम आज यहाँ से हमारी रैली है, हम बस स्टैंड तक जाएंगे और लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि हम अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सवार को चुने अपने वोट के अंदर। थैंक यू। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर ने एक रैली अरेंज की है अवेयरनेस करने के लिए, इलेक्शन की अवेयरनेस के लिए, जहां हम पूरे मार्केट से रैली निकालेंगे और तरह तरह के लोगों को अवेयरनेस देंगे कि वोट करना क्यों चाहिए। वोट उनका राइट है और वोट उन्हीं का वोट एक महत्व रखता है एक डेमोक्रेसी में। जब तक वो वोट नहीं करेंगे उनकी वैल्यू जो है वो शो नहीं होगी। थैंक यू। हमने आज की रैली जो है ये स्वीप के अंडर ये रैली निकाल रहे हैं, जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज सुरमकोट से निकल गई और बस स्टैंड पर तक जाएगी। और बस स्टैंड पर हमारा आज का मेगा इवेंट है, जिसमें हम आज का प्रोग्राम जो है वो जो है वहाँ स्किट भी है और मॉब जो है हमारी डांस भी है, स्किट भी हमने वहाँ करवाना है। और हमारे साथ जो हमारे आरओ साहब हैं वो भी होंगे और उसके साथ साथ हमारे एआरओ साहब भी जो है हमारे साथ वहाँ शिरकत करेंगे। यहाँ से हमारा स्कूल से यह रैली की सूरत में हम इसको जो है हमारी बात हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उन्होंने कहा है कि हम वहाँ जगह जो है आपको मुहैया करेंगे, आप वहाँ प्रोग्राम। जनूबी कशीर हिंदन जिले कुलगाम कन कयान इलाकन मज इतरात दोपहर पत डोट पेनत वाव तूफान सहित मेव बागन सठ हुई नुकसान सपुद तज आज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीरन मुतअसर इलाकन हुंद दौर कोरमुत या दौरान तिमन हमरा महकमिक दोयम जिम्मेदार तो माहिर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो सूरत हाल साम तज तिमो मुतलिक अफसरन वोनमुत तिम गन नुकसानुक तखमीन करने हवाले टीम तश्कील दिन युत जन मुतअसर बाग वालन इमदाद करने यी येल जन तिमो बाग वालन वोन तिम गन माहिरन हिंदन मशवरन पे अमल करें। तो सारा जो अभी ये इलाका है ये एप्पल में ही ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि अब इस वक्त हार्वेस्टिंग स्टेज में था, तो 10-15 दिन में ये ऐसे भी उतरने वाला था। लेकिन इस वक्त डैमेज होना ये बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त डैमेज अगर थोड़ा भी ये पड़ेगा आला बारी 5 मिनट 10 मिनट भी पड़ेगी तो डैमेज ज़्यादा होता है, क्योंकि इस वक्त लास्ट स्टेज होती है। तो डैमेज काफ़ी हुआ है। तो हमें हमारे हिसाब से हाँ किसी इलाके में 10-15% हुआ है, लेकिन जो मैक्सिमम जो फ्रूट बेल्ट है उसमें 50 से 60% जो हमें तखमीना लगा अभी जो जन बागों में हम गए, क्योंकि ये हेल स्टॉर्म के साथ स्ट्रॉन्ग विंडर्स जो थे उनकी उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि जो हमने देखा नीचे गिरा है, क्योंकि इस वक्त साइज़ ज़्यादा है, वेट भी फ्रूट का ज़्यादा है, तो जब विंडर्स आ गई तो सारा गिर गया। तो इस वजह से नुकसान काफ़ी हुआ। हम देख रहे हैं कि लोगों ने जमा कर रहे हैं अभी फ्रूट्स, तो बड़ी बड़ी ठेली बड़ी बड़ी उन्हें अब गाड़ियों में भर रहे हैं। तो इस वक्त अगर 4-5 दिन और रुकता, मतलब ये मौसम ठीक रहता तो ये हार्वेस्ट हो जाता, तो नुकसान इस वक्त काफ़ी हुआ। सर कल हॉर्टिकल्चर लिस्ट बेसिकली कोई लिस्ट नहीं होता, टेंटेटिव फिगर यह होती है कि मान लीजिए फ़ोन पर मालूम किया कि कितना हुआ, तो लेकिन जब बाग में जाते हैं तो फिर वो एक्चुअल पता चलता है। तो टेंटेटिव लिस्ट आगे हम सबमिट भी किसी जगह नहीं करते। ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना माउथ टू माउथ एक मामला होता है कि एक बात पहुंचती है, तो उसका कोई स्कोप नहीं होता है, कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है कि ना आगे किसी जगह हम वो सबमिट करते हैं। तो लिस्ट हम वही सबमिट करते हैं, ना इस पर कोई साइन होता है। उस लिस्ट पर किसी का मेरे पास आया हुआ, लेकिन इस पर किसी का साइन नहीं था, वो अनसाइनड होता है। तो लेकिन जब हम बागों में जाते हैं फिर पता चलता है कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। कभी कभी टेंटेटिव लिस्ट से कम होता है, लेकिन इस वक्त टेंटेटिव लिस्ट से नुकसान ज़्यादा है। तो तब पता चलता है जब हम फील्ड में जाते हैं, जब हम घर से निकलकर बागों में जाते हैं। तो इसलिए टेंटेटिव लिस्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस। यपर जिले शुपियन के मुख्तलिफ इलाकन मज रात मौसमी खराबी दौरान मेव बागन बार पैमानस पे नुकसान सपुद तज मुतअसर बाग वालों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत कुन गि खास जोन दिन युन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव नुकसान तखमीन करने बापत कया कदम तुलना आमत युत जन मुतअसर बाग वालन इमदाद फराहम करने
करना चाहता हूँ पहले तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि हमारे जो अभी सेब है ये बिल्कुल तैयार थे, हम इसको अभी उतारने वाले थे, लेकिन एक हमने एडवांस में पैसे जितने भी लिए थे हमने इस बगीचे पे हमने जितने भी एडवांस में पैसे लिए थे, वो जितने भी कर्जदार है, फॉर एग्जांपल केसीसी है किसी का, और इतने बड़े बड़े मतलब जो अभी टेंशन है, अभी जिससे हम टेंशन से गुजर रहे हैं, उसमें हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। तो फिलहाल हमारी गुजारिश ये की है कि हमारे जो बाग है वो तो डैमेज हो चुके हैं, अभी फ़िलहाल इसका तो कुछ होना ही नहीं है। तो फिलहाल अगर हमें इससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए, हमारा जो केसीसी है और कोई भी मतलब किसी एंगल से भी अगर हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिलती है, तो हमारे जो टेंशन जो रिलीफ है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मतलब बागवान अभी तैयार थे अब सेब उतारने के लिए, किसी को शादी करनी थी, किसी बेटी की शादी करनी थी, बेटी को सोना लाना था, उसके लिए भी उसके लिए भी हमें पैसे लाने थे। तो फिलहाल हमें एलजी गवर्नर से अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो अभी बाग है वो डैमेज हो चुके हैं, तो फिलहाल हमें सपोर्ट की ज़रूरत है अभी। तो हमें केसीसी पे जितना, और खासकर जो केसीसी है हमारे गाँव में कचडोरा में रहता हूँ, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में कचडोरा में जितनी हम सबसे ज़्यादा केसीसी की प्रॉब्लम कचडोरा में आती है। तो फिलहाल अभी हमें अपील करना चाहता हूँ, ये अगर हमें किसी भी एंगल से फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिलती है तो हम थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस करेंगे। मैं मोहम्मद अशरफ मलिक शोपियान कचडोरा कचडोर इलाकस मज विहिल दांगोम वांगोम विहिल कचडोर हांसपुर बेमिनपुर एरिया यप यथ मज ताप मज त्रट अख ये जन वुचमुत वनस तान जा 10 दह सिर्फ 10 अगस्त पे वाल चूंकि कलर कूत कलरफुल वनकस माल 2 दह 8 दह 12 दह वालनस यह पीकस पे वनकस माल क्युत माल गुलाल ह्यू माल वनकस पत्थर तह वस ताप मज सोदी त्रट यथ इलाकस वनकस ओनमुत करोड़ बदी रोपये ओनमुत यथ मालस पे खानदर बे क्या मतलब हर तरह के अखराजात होते हैं हर घर में। इथे पे सोचान वनकस मतलब प्रेशर दवा खो रात पे कत्या खो प्रेशर दवा मे खो 3 फिर प्रेशर दवा रात पे अम सब कि बह वन बहुत हेकान तुह ब्रो कन वन कह तिकाज ये तरन फिक्रे कुलन पे हाफ्तन जन खेमित ूट कुलन पे ूट तम डैमेज A to Z 0 से लेकर मतलब 10% वनकस डैमेज माल सोरे माल ये मन कुन लायक वन गवर्नमेंटस कर इल्तिजा अपील मतलब गुजारिश कर कि अगर थोड़ा बहुत मतलब ये मज कूत लोगमुत दवाहस कत्या पोस लगित खाद कत्या पोस लगित मतलब वनस तान कत्या पोस पे खर्च गमित सह कहें ये पत्र कन वनकस माल पत्थर डैमेज अत रोपये 50-60 कुलन पे वनकस माल यह सोरे A to Z अत मन ूट तक लगहर कह अगर ूट छान वन पेन बम्बर खेन तम खेन ूटन वन कि अत पोस दिन वालने खतर अत मालस। तो अवे गवर्नमेंटस वनकस कर वन इल्तिजा चेनो कम पहम थोड़ा गस राहत मिले अगर थोड़ा मदद गसा गवर्नमेंट की तरफ मतलब ये मज क्या परसेंट कूता शुबि क्या शुबि कतस क्या एरिया मज सोरे 100 पोस वन अगर गवर्नमेंट 50 पोस मदद कर तो थोड़ा रोजो ये नागवानी आफत मान तो ये पे त्रट वनकस अकिस जमींदारस बह क्या हेक कर बह हेक यहज कत गवर्नमेंटस तान वातन बाकी माना अथन मज कह बह हेक तूत मदद कर खाली मे तम युत बह हेक अकिस नश DCS नश वातन LGS नश वातन बाकी कोतनस कोतनस मे गन पटवार तहसीलदारस नश वातन बस गवर्नमेंटस ते अपील कर मेहरबानी करके यहाँ आ जाए, यहाँ देखिए यहाँ कितना नुकसान है। तो अम मजीद क्या मे कर बस शान बशान सन मगर यह नागहानी आफत अत क्या हेक बह कर। जो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का अभी लेटेस्ट आया हुआ था कि ये इफेक्ट करेगा हमारी वैली को भी और J&K को भी, तो कल यहाँ पे वो एक सिचुएशन बनी है। एक तो क्लाउड बर्स्ट भी हुआ थोड़ा सा, बट नाला था तो वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो हमारे ऑर्चर्ड्स थे एटलीस्ट 25 जो हमारे ये विलेजेस हैं उनमें ये हुआ है नुकसान। तो उसमें हमने टीम्स कंस्टिट्यूट की कल ही, जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दे आर असेसिंग द लॉस। तो जो ही वो हमें आज शाम तक या कल सुबह तक जो ही वो पूरी डिटेल्स आ जाएंगी तो एज पर नॉर्म्स हम पूरी कार्रवाई करेंगे। एंड आज ही हमें जो हमारे डिवीजनल कमिश्नर साहब है उनकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि द लॉस इज टू बी असेस्ड और जो इमीडिएट रिलीफ है वो दिया जाएगा। लोगों के लिए क्या मैसेज है क्या? बस यही है कि वी आर विद यू, आई एम एट योर सर्विस ऑलवेज, आई एम हियर एट शोपियान। 4 दिन पे हैं, वी आर इन इलेक्शन मोड, लेकिन साथ में जो भी
हमारे ऐसे हालात बनते हैं वी विल टैकल, और जो भी हमारे एक्सटेंड नॉर्म्स हैं उसमें पूरी हेल्प की जाएगी। राउंड द क्लॉक वी आर एट योर सर्विस, हमसे जो भी हो पाएगा हम करेंगे, और उम्मीद है कि हमें आपका भी सपोर्ट रहे, आपका भी ताउन रहे, खुसूसन जर्नलिस्ट का, कि एक अच्छा माहौल रहे, क्योंकि इलेक्शन का इस वक्त ये सीज़न चल रहा है पूरी J&K में, तो वी नीड ऑल योर सपोर्ट। एंड इस वक्त भी मैं यही कहूँगा कि 18th is the day of power, because power is back to people and they have to give it back to some person to represent. तो इस्तेमाल कीजिए इस पावर को, is a great nation, you have even the power to hold your power, nota भी available. तो नाजरीन इस वक्त कोशर खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।